Okay, welcome back to our legal matters. कानूनी मशवरे हम ब्रेक पे चले गए थे, ब्रेक के बाद आए हैं. So continue calls. आपको हमारे टेलीफोन नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा. So अगर आपके कोई क्वेश्चन do call us. We don't want to waste time. Straight हम आपके जो issues हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे. Shahid, we were talking about these new rules यार in October. Obviously, it's going to have an impact. Rafiq साहब, criminal जो issues हैं, we'll carry on talking about that. But on the immigration side, जो new rules आ रहे हैं, अपने views को बताते चलते हैं that what's going to be happening. Some changes are coming. Yeah, I mean, the previous programs we've talked about the fact that life in UK test would be made slightly more lengthy. There'll be more areas which would be covered, and also the English language requirement जो है वो level B1 जो है European Union framework of English languages जो है उसमें expect किया जाएगा कि minimum आपका जो वो criteria है language का वो should be level B1. So these tests are going to be difficult holding. So the life in UK test plus the language B1 is going to be more thorough now. More thorough, and you would be expected to have better knowledge of life in UK. Yeah, so say that. And apart from that, in October there will be a new criteria of test of genuineness. So if anybody is making any application, say as an employer, and they want to sponsor employees, then they would have to satisfy the criteria of genuineness, and that might actually require that a would-be employer would have to go and sit a face-to-face interview with an immigration officer. So ये जो genuine test जो अब आने वाला है, that's going to hit everybody across the board, everybody all across the categories. Yeah, point-based system जो है, जितनी भी point-based system applications हैं, there would be a requirement of genuineness. Rafiq sahab, obviously this is going to have a negative impact. Already testing, already लोग अपने genuine होते हैं, they are putting the application in, and even more now how the tests are coming in. Yeah, basically government जो है ना everything है ना making it more and more difficult कर रही है. ये तो मैं पहले भी आप जानते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, ये बहुत सख्ती कर रहे हैं हमारे लोगों पर in particular, you know. और ये और तरीका है basically ये काम डाउन करने का. जी, but what do you think? I mean, obviously the genuine test you said about they have to prove even more in more depth about the genuineness about the application. That's right. So obviously there's going to be so much refusals, there's going to be a lot of appeals going through. We can help in that. Absolutely. That's the point I'm trying to make. That's right, yeah. I mean, if somebody is desperately seeking employees because they can't source them from UK, and there's a genuine need, so in law there is only one way to actually satisfy that need, and they would have to apply for a license for sponsorship. That's right. And that's where the difficulty lies. When they do actually submit the application, Home Office can just turn around and say, well, we don't think you have a genuine business. Sure. So that's why it's imperative that they get correct and good legal advice while they are submitting the application. Shahid, as you know, and as Rafiq sahab ko bhi pata hoga, there are people who जिन्होंने companies से sponsorship लिए आए मुल्क में, they've been working here, वो company भी बंद हो गई, and obviously they want to switch around. We can help in that. Absolutely, yeah. I mean, the law stipulates that if you happen to find yourself in unfortunate situation which is no fault of your own, that a company falls or shuts down, then the law says that as long as you can find a similar work in another company, then you are allowed to switch to another employer. Yeah. ठीक है. तो हम अपने views से ये कह रहे होंगे नाज़रीन, अगर आपके पास कोई issue है about your sponsorship issue, और अगर आपका switching का है, आपका going to a different employer, we can help you in that matter. आपको help कर सकते हैं, advice कर सकते हैं, आपके जो legal issues हैं उसको cover कर सकते हैं, so that आपका home office everything will be in the right and correct manner. Rafiq साहब, obviously मैं अभी आपके पास question करने से पहले call आए उससे लेते हैं. जी, hello, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम. जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ लंदन से. जी शाहिद साहब. जी, क्वेश्चन पूछना था आपसे कि मेरी वाइफ है, उसने इंडेफिनिट लास्ट इस ईयर उसने लिया ना. ओके. तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि उसने वो जो टेस्ट होता है वो इंग्लिश का वो पास कर लिया था, स्टिल उसको टेस्ट देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? ठीक है. शाहिद साहब, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. आपका सवाल हमें मिल चुका है, शुक्रिया आपका. रफीक साहब, ऑब्वियसली हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्यूज हम यही कहेंगे तो आप क्वेश्चंस रखते रहें. वी गोना आंसर एज मैनी एज पॉसिबल.
ये आपसे कह रहे थे शाहिद साहब एंड रफीक साहब, obviously on the switching, if people want to switch from one employer to the other, we can provide a help, and this is the expertise and get the right solicitors to help you. राइट एडवाइस है ना, क्योंकि हर चीज़ जो आप करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लोग समझते हैं खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नतीजा उसका ये होता है कि अगर वो रिफ्यूज़ किया जाता है तो एक तो यह ना सेटबैक हो जाती है, बाकी माली नुकसान होता है क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। सो बेहतर ये है कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए और मशवरा ले लें तो वो बेहतर होता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो अगेन अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ऑन द न्यू रूल्स एंड जेन्युइननेस, जो शायद यू मेंशन ऑन ए पॉइंट बेसिस अक्रॉस द बोर्ड, that's going to be coming in October. Now there's going to be a number of factors going to be affecting people in the applications, but वैसे point based system difficult है। Yeah. Now this is going to make it more difficult for a lot of people. It just adds an extra layer of scrutiny by the UKBA. Of course. Yeah. Now जिनका जो पहले जो existing people, that's not applicable to them anyway because they don't have to prove that. और जिनके existing application चले गए before the 31st of October, that's not going to affect them. These are the people, anybody and everyone after the date. That's right. That's right. ठीक है, रफीक साहब आप ये बताएं, then obviously in the last time we did discuss it, 18,600 जो इन्होंने जो लगा दिए for spouse, must be earning that much. Then we had the issue about the visitors being refused. Again, this is a pure clampdown, and as you mentioned, ये हमने views को ये बताया था last time on television, ये हम लोगों की help कर रहे हैं, we are trying to fight their corner, लोग कांटेक्ट भी करें, एमपीओ को भी लिखे, पर आपने ये जो बात लास्ट टाइम बताई थी उससे थोड़ा सा और मेंशन करें था, हाउ द पीपल कैन एंगेज जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो बेसिकली ये बात है ना, कंप्लेन करना चाहिए। ये एक जैसे करते हैं, हमारी मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, जिधर भी आप लोग जाते हैं उधर एक वैसे है ना, कोई पिटिशन साइन कर सकते हैं, अपने एमपी को बताएं कि ये जो है ना ये नाजायज़ हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो है, जो मतलब उनके राइट्स इरोड किए जा रहे हैं, और ये जो करते हैं ये चेंजेस भी हो सकता है ना अगर प्रेशर डाला जाए। ये प्रेशर हम लोग प्रेशर नहीं डालते, लेकिन कंप्लेन करते रहते हैं। प्रेशर डालेंगे तो चेंजेस आ सकती हैं वापस। Very good. अच्छा, ठीक है, I'm trying to now some of these questions जो हमारे पास आए हैं, let's try to address some of these issues। जो पहली कॉल आई थी हमारे पास अपने हैदर जाफरी साहब की, शाहिद साहब इसका थोड़ा सा बताएं। British is a British passport and ब्रिटिश सिटीज़न है हैदर जाफरी साहब, और उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो स्पाउस हैं उन्होंने इस्लामिक मैरिज किया हुआ है, और अब वो चाहते थे कि उनका भी जो स्टेटस है रेगुलराइज हो जाए। उनके बच्चे भी हैं एंड देयर ऑल ब्रिटिश, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सो बेसिकली उन्होंने पूछा था कि मैं एज अ स्पाउस वीज़ा पे जाएं या बच्चों की बेसिस पे किया जाए। तो आई थिंक अंडर द स्पाउस that would be a stronger application, and they could put forward supporting evidence कि उनकी relationship genuine है, बच्चे भी हैं, बच्चों के birth certificate है, और the fact that they're all living together will strengthen the his case and application as an unmarried yeah. Unmarried, yeah. तो हैदर जाफरी साहब आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अभी कॉल आ रही से शामिल करते हैं, वो लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं ब्रेकफास्ट से बोल रही हूँ जी। एक्चुअली मैं 2011 में मैं इंडिया से आई थी सितंबर में। ठीक है। तो मेरी 2 साल का वीजा लगा था मेरा, तो उन्होंने 3 महीने का मुझे एक्स्ट्रा दिसंबर तक वीजा लगा के दिया। ओके। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, फिर 1 मंथ के लिए फिर मैं इंडिया गई थी, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जब मेरे 2 साल खत्म हो जाएंगे तो क्या मैं पेपर अप्लाई कर सकती हूँ मैं? अच्छा, फिर से क्या अप्लाई कर सकते हैं? इंडेफिनिट लीव आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सॉरी, आप अपना तो नाम बताएंगे पहले? हेलो, चली गई, she dropped. We'll come back to that one. She's got 2 years visa on that one. शायद so ये तो unmarried they can do it. ये हैदर जाफरी साहब का जो था, he can put the application. Yeah. अभी before we answer other question, एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। हेलो। मुझे जी एक्चुअली मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, और मेरे 4 साल हैं, लेकिन 5 साल का वो प्रूफ मांगते हैं।
तो 1 साल वो कहते हैं कि मेरा मिसिंग है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही लेटर है जिसमें मेरा बच्चा डॉक्टर के पास जाता रहा है, तो उस डॉक्टर ने मुझे ये लिख के दिया है कि ये अपने बच्चे के साथ विजिट करती रही है। तो क्या ये प्रूफ इनफ होगा इसके लिए, 1 साल को प्रूव करने के लिए कि मैं इस मुल्क में थी? क्योंकि मेरे पास कोई बिल नहीं है, कोई और लेटर नहीं है कि मैं अपनी प्रेजेंस यहाँ प्रूव कर सकूं। लेकिन मैं यहीं रही हूँ, मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया हुआ था, तो मुझे उन्होंने यही कहा है कि 1 साल की प्रेजेंस का प्रूफ शो करो। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, आप नाम बताएंगे सिस्टर, नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोनिया है जी। सोनिया, थैंक यू सोनिया फॉर कॉल, वी गॉट योर क्वेश्चन, शुक्रिया। शायद रफ़ीक साहब हम क्वेश्चंस को जवाब दे दें बिकॉज टाइम की वजह से। लेट्स गेट इनटू दैट। आपने अली की कॉल आई थी लंदन से, एंड इज अ ब्रिटिश, एंड एक मिनट बिफोर आई एम गोना गो टू दिस कॉल आई से शामिल कर लेते हैं। लेट्स जस्ट गेट दिस वन कॉल बिफोर वी आंसर। जी, कौन कहाँ से? हेलो, मैं शिमी बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले फोन करा था वीजा के लिए, इंडेफिनिट स्टे के लिए। मैं मैरिज वीजा में आई थी सर। अच्छा, ठीक है। जी जी जी। तो मेरे वीजा खत्म हो रही है दिसंबर में, लेकिन जो 2 साल का 2 साल मेरा खत्म होंगे सितंबर में। ठीक है। तो ये पूछना था कि बीच में 1 मंथ के लिए इंडिया गई थी मैं। तो मुझे पूछना है क्या मैं सितंबर में अप्लाई कर सकती हूँ, या मेरा वीजा जब मेरा वीजा दिसंबर तक आया, मेरा वीजा दिसंबर में अप्लाई करना कि मुझे 2 साल सितंबर में खत्म होंगे, कि मुझे तब अप्लाई करना? प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके, for the settlement. Take it, Shimmy. Thank you very much. अभी हम trying to जवाब दे दें questions, okay? अली लंदन से जो थे रफ़ीक साहब, यही है ना, उन्होंने बेसिकली रिफ्यूज हो चुका है और इफेक्टिवली वो बोलते हैं पाकिस्तान जाओ, उधर से एप्लीकेशन दो। और ये अली साहब ये घबरा रहे हैं क्योंकि बीवी काम नहीं कर रही, और कैसे वो एप्लीकेशन देगी। ये जायज़ उनके कंसर्न्स है। उनके मेडिकल रिपोर्ट को भी उन्होंने नहीं कंसीडर करा था। इफेक्टिवली ये है ना कि मेरा ख्याल ये मैं एडवाइस देता हूँ कि री-एप्लीकेशन देनी चाहिए और पुश करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स जो है कि नहीं जा सकती, क्योंकि जेन्युइन रीज़न है क्यों नहीं जा सकते। ये जा सकते क्योंकि फैमिली दे वांट टू लिव टुगेदर एज अ फैमिली इन द यूनाइटेड किंगडम। और इनका अच्छा केस है ऑन द बेसिस की वाइफ की इलनेस, मेडिकल रिपोर्ट भी है, जेन्युइन है, और ये ह्यूमन राइट्स एंड आर्टिकल 8 पर ये पुश करना चाहिए जो केस है। अगर इनको हेल्प चाहिए तो ज़ाहिर है हम कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अली साहब का ऑब्वियसली एडवाइस आपको मिल चुकी है, आपके आर्टिकल 8 अंडर ह्यूमन राइट्स रफ़ीक साहब ने अभी बता दिया, वी कैन हेल्प यू ना, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं। कौन कहाँ से? हेलो 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 जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। Yes, my name is Tahir, calling from Kent. Okay. Hello? Hello, yes, you're on air, Tahir. Thank you very much. You're actually on air now. And, okay, मेरा एक क्राइम हुआ था, मेरा डिवोर्स हो गया है, तो मैं मेरी बीवी के घर पे गया तो उसने केस किया था कि मैं मेरे घर पे आया, तो पुलिस ने मुझे फाइन किया हुआ है। सो मेरे अगले साल मेरा इंडेफिनिट स्टे, तो मुझे इफेक्ट होगा वो? ओके, गिल्टी फाउंड किया हो। ओके, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट ईयर का ILR का ये उस पर इफेक्ट होता है ही नहीं। ठीक है ताहिर साहब, की वॉचिंग प्रोग्राम, हम आपसे फिर बात करते हैं। दे विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज गोना हैव एन इम्प्लिकेशन। रफ़ीक साहब, ऑब्वियसली आपने अली साहब का कर दिया, एंड अभी एक और बहुत माशाल्लाह से काफ़ी कॉलें आ रही हैं। वी कैन टेकिंग द कॉल्स। कौन कहाँ से? हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you very much. My name is Nabil. Actually, I've just got a question actually for you. Yeah. I'm on tier 1 at the moment. मेरी वाइफ ने मुझे ज्वाइन किया था लास्ट ईयर जी, अप्रैल में उनका वीजा लगा था, तो नेक्स्ट ईयर में मुझे 10 इयर्स हो जाएंगे यूके के अंदर। तो मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा नेक्स्ट ईयर। तो आपका क्वेश्चन इज कि उनको जो है पूरे 5 साल जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे आफ्टर इंडेफिनिट, या फिर उनको वो जो टाइम पीरियड ऑलरेडी मेरे साथ गुजार चुकी हैं वो कंसिडरेबल होगा उसके अंदर? ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ऑब्वियसली मैं तो टियर 1 पे हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैंने डिग्री भी यहाँ से की है, तो मुझे जो लाइफ इन द यूके टेस्ट का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट है वो भी मुझे देना पड़ेगा, या वो मेरे लिए एक्सेप्टेड होगा? ओके, ठीक है, वेदर आप पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो नबील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन।
शुक्रिया। रफ़ीक साहब, obviously we need to go through some of these questions जो हमारे बहुत सारे आ रहे हैं माशाल्लाह से। Ali from I think Moston शायद third call is life in UK test in 2012 उन्होंने करा था। ILR के बारे में वो पूछ रहे थे, तो you know इनके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी व्यूअर्स को कि क्योंकि न्यू रूल्स जो आपको पता है वो आ रहे हैं इन फोर्स इन अक्टूबर, जिसमें जो है लाइफ इन यूके टेस्ट जो है उसकी जो है रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि इन्होंने जो है ILR के लिए कब अप्लाई करना है। इन्होंने बिफोर द कट ऑफ डेट से पहले करना है तो पुराना वाला जो है वो यूज़ हो सकता है, उसके बाद अगर करेंगे देन ऑब्वियसली he will have to have the new test passed. Okay, so basically क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि मैंने अप्लाई करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि आफ्टर द डेट करना है। अगर आफ्टर द डेट है तो ज़ाहिर बात है they have to do the test. They have to do the new test. अली साहब मॉस्टन से आपको मैसेज मिल गया, अगर आप चाहते हैं contact us, we're more than happy to help you regarding your case. एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो जी, वेलकम टू जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो, यस यू ऑन एयर जी, आप एयर यू ऑन एयर नाउ। वालेकुम सलाम जनाब, मैं शौकत बोल रहा जी। शौकत साहब, एक महीना पहले ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ। मैं पूछना चाहता कि इस तो बाद की होगा साਡਾ मुस्तकबिल की है इस बाद, ये इस तो बाद। एक मिनट शौकत, आप अभी ऑनलाइन रहें बिकॉज आपका क्वेश्चंस बिल्कुल 100% क्लियर है। वी गॉट इट डाउन शाहिद रफीक साहब, इलीगल वर्क एंड या और व्हाट हैपेंस इम्प्लिकेशन। हाँ शौकत साहब, आप प्रोग्राम वॉच करें, आपको अभी बताते हैं क्या आपका हल होगा, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। राइट, लेट्स ट्राई टू आंसर सम ऑफ दीज इश्यूज वी हैव जस्ट हैड। Let's just get one more call. एक और कॉल आ रही है, वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वंस अगेन मैंने अब क्वेश्चन किया, थोड़ी देर पहले कॉल की थी। तो शाहिद है मेरा नाम, लंदन से बोल रहा हूँ। तो आपने कहा था कि वो बता नहीं सके कि ILR कब अप्लाई किया था। मेरी मिसेज ने इंडेफिनेट उसका हो गया है अभी, उसने ये नेक्स्ट ईयर जनवरी में नेशनलिटी अप्लाई कर दी। अच्छा, मैंने ये पूछना था, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो उसने ई-सोल किया था जब वो इंडेफिनेट से पहले। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब उसको कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा या कि वही वैलिड होगा? ठीक है, ओके। शाहिद साहब, सॉरी अली साहब, कीप वाचिंग प्रोग्राम। और आपको शाहिद ये शाहिद, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल शाहिद साहब, वी विल आंसर योर क्वेश्चन। आप वॉच करें प्रोग्राम, थैंक यू फॉर दैट। ई-सोल के बारे में डज ही हैव टू डू दैट? Shall we just go through the next one? MS साहब का जो कॉल जो आई थी, question about the car accident, Mr. Abdul. Yes, ambulance, yeah. Right, we'll just come back to in a minute. Let me just get this call. एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, इमरान साहब से बात करवा सकते हैं? जी, आप बात करें। ये सिस्टर ऑन है, आप अपना क्वेश्चन करें। यू आर एक्चुअली ऑन है नाउ। मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने हस्बैंड का अब इन 10 मिनट का पीरियड कंप्लीट होने वाला है, 27 मंथ, तो उनकी एक्सटेंशन मैंने लमसम नहीं करवाना चाहती, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है। तो 1 ईयर का, तो वो कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए? आप अपना नाम बताएंगे, बिकॉज बहुत सारी कॉलें आ चुकी हैं। आप हमें नाम दें सिस्टर। सारा बात कर रही हूँ। सारा, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सारा, शुक्रिया आपका क्वेश्चन के। राइट, अभी हम क्वेश्चन बहुत सारे आ गए इनके, अभी क्वेश्चन अभी हम कॉल अभी लेंगे, मगर पहले ये जवाब देंगे। रफ़ीक साहब, ये जो ऑब्वियसली वी हैड दैट कॉल जो ब्रेकफास्ट से दे रहा, हाँ या ठीक है, थैंक यू। जो कॉल फ्रॉम ब्रैडफोर्ड जो थी, इंडियन, यू नो, इंडियन लेडी,
जी. No, it's prior to that one. No, there's a few here actually. Sorry. We haven't answered. You know, there's sorry. Can we do it in order? No, can we just stick with it? Mr. Ahmed जिनका accident हुआ था, sorry, the accident case, yeah. Let's just go with that one. 2011 में. Fairly straightforward ये है ना कि basically ये evidence भी है इनके पास, यानी इन्हें अपना डॉक्टर पे गया हॉस्पिटल गया था, इनके पास एम्बुलेंस भी डिटेल हैं. मेरे ख्याल में अच्छा केस है इनका और एप्लीकेशन देनी चाहिए. जो इंजरीज जो है इनके पास टाइम भी है अभी, क्योंकि जून 2011 में एक्सीडेंट हुआ था, तो जून 2014 में इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा. तो रियली ही इज़ गॉट टू गेट ऑन विद इट. या बिल्कुल. मैं एडवाइस इनको देता हूँ कि अगर ये हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसका केस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. शुक्रिया रफीक साहब. टाइम की वजह से मैं आपको कीप गोइंग. अमित साहब, आपको पता चल गया कॉलर्स फॉर रिगार्डिंग कार एक्सीडेंट का, जो एम्बुलेंस जो आपको हिट कर रही थी, जिस एम्बुलेंस से आपको हिट कर रहा था, वी कैन डू केस. आपका एक पोटेंशियल गुड केस है, गिव अस अ कॉल, आपको हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम. और जो दूसरी कॉल आई थी मोहम्मद साहब, शायद it was due to ILR, needed to apply. He's in work full time, wife is not working, housing benefit, and she's on sickness benefit. Unka issue जो था, is it going to have an effect on that? Normally law यही कहता है कि no recourse to public funds. So clearly अगर वो housing benefit ले रहे हैं और sickness benefit जिसको ये मोहम्मद साहब की बात हो रही है. जी हाँ, indefinite leave का. तो obviously if you strictly apply the law, no recourse to public funds, then obviously there will be issues with that. So basically this is going to be a negative impact on that's right. ILR. जी हाँ. तो मोहम्मद साहब, आपको उसका जवाब मिल गया. ये आपको पब्लिक जो रिकोर्स होती है उस पर आपको नहीं जाना चाहिए, इसे कोशिश करें स्टॉप करें, सो ना आपका इफेक्ट नहीं हुई. टाइम भी इनके जो आपने ले लिया, दैट्स probably okay, but now you need to consider not taking public funding. अली साहब का जो कॉल आई थी, रफीक साहब, he was on T1 General, and उनका different ILR is now due, and उनके बच्चे भी हैं. Basically we need to give him an answer on that one. I think मैंने actually अच्छी तरह ये नोट नहीं किया था. ये मैं समझता था ILR इसका ड्यू है नेक्स्ट ईयर. ये ने बोला था बच्चा बोर्न हुआ था लास्ट दिसंबर जो था, राइट? डिपेंड्स है ना कि ILR के क्या बेसिस है कि हस्बैंड जो है, मैं समझ रहा हूँ ये बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि इफेक्टिवली पूरी फैमिली जो है फैमिली व्हाट दे ट्राइंग टू डू, do they बच्चे के उसमें शामिल करें या नहीं करें? That's why I think that's why he's trying to gauge. Well, बच्चा जो है ना पे ये जाहिर है कि बच्चे को तो शामिल करना पड़ेगा ना पे. अगर इनके पास और कोई स्टेटस नहीं है, बच्चे का स्टेटस ये डिपेंड्स ऑन देम एज वेल. बच्चे की तो स्टेटस कोई ब्रिटिश तो नहीं हो सकती. शायद Ali Wam जो थी. Yeah, that's right. I mean, I agree with Mr. Rafiq that when he's applying for his indefinite leave to remain, he should add the child, or if they have any other children during that time, because उन सब को उसी में डालना है. उसी में उनका काम उसमें आसानी हो जाएगी. अली साहब, आपको जॉब मिल चुका है तो आप उसी एप्लीकेशन में डालें, और ILR में जब डालें तो बच्चे का भी डालें. इट्स गोना बी हेल्पफुल टू गेट इट ऑल इन वन. शाहिद साहब लंदन का जो आया था, obviously he said about his wife ESOL test. Wife in the UK test, उन्होंने ESOL पास किया था. ESOL का अभी हमने जैसे कि ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी मेंशन किया हुआ है, डिपेंड करता है कि वो कब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स जो हैं वो अक्टूबर में चेंज हो रहे हैं. और एज़ फार ESOL इज़ कंसर्न, इट इज़ प्रॉबली ओके फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अक्टूबर के बाद जो है होम ऑफिस जो है दे आर एक्सपेक्टिंग हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस in 4 areas of English language, being it reading, writing, listening and speaking. उन्होंने कहा था they already passed the English test. They passed it, yeah. But the thing is, that's at a lower threshold. In October, the English language requirement goes up. So that ESOL might be slightly below the new requirement. ठीक है. Thank you. शाहिद साहब को लंदन से मिल चुका होगा. ब्रैडफोर्ड से जो कॉल आई थी regarding somebody went India 2 years से, and they had to stay. Shahid, on that one, ILR, they want to discuss about the indefinite leave to remain. Yeah, that's right. I mean, वो ये कह रही थी कि मैं एक महीने के लिए गई थी इंडिया गई थी. तो the rule is कि you are allowed some period of time of absence from UK
that's not going to have any detrimental effect on her application. The normal procedure is when your visa is due to expire, you reapply for extension 1 month prior to your visa expiry date, so that you stay within the rules. That's right. Rafiq Saab, Sonia called about naturalization, and she had 1 year missing unko proof chahiye. This is a very, you Sonia ka jo call ayi thi naturalization, we need to cover that. No, I think the way I would deal with it, मैं advice उनको ये अगर documentation नहीं है ना उनके पास कोई, तो उनके उन्होंने बोला था कोई medical records हैं, कोई बच्चे का ये that helps. उससे अलावा मेरा ख्याल ये कोई statutory declaration कर ले, affidavit बना सकती है जो एक legal document होता है, जो कवर कर सकती है जो पीरियड जो था, और बेसिकली अगर इनके पास कोई नेबर्स हैं, कोई विटनेसेस हैं जो कंफर्म कर सकते हैं कि ये जानते हैं, अगर वो भी एफिडेविट बना दें, ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कर दें, ये हेल्पफुल हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था ना, उनके पास एक लेटर है फ्रॉम डॉक्टर जो बच्चे को लेके गए थे। जी हाँ, वो उनका फोकस जो है ना सिर्फ उसके ऊपर है, लेकिन उसके अलावा जो है वो अगर इस कंट्री में रह रही हैं और जैसे उनका कहना है कि जी मैं पिछले 5 साल से रह रही हूँ, तो हर एड्रेस का जो एक इलेक्टोरल रजिस्टर होता है, एंड इफ़ यू आर लिविंग देयर यू पेइंग काउंसिल टैक्स, then obviously she can tap into the electoral register data to prove that she's been living there. As I say, that's very valid. ये council tax का जो bill है, बस ये रफीक साहब ने जो बहुत important चीज़ का affidavit statement बना ले, so that will help Sonia. Yeah, I mean if she's got like a tenancy agreement going back to 5 years, she can get like a statement from the landlord to say that yeah she was living there and she was paying the rent. Thank you. ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये हो जाए बेहतर है, कि कभी-कभी आते हैं रिश्तेदारों के पास रहते हैं, कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये भी मसला होता है। ठीक है, थैंक यू रफीक साहब। अपने सोनिया आपको मिल चुका होगा जवाब। अगर आप चाहते हैं उसकी आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, देन गिव अस कॉल, वी विल टेक द केस। एक और जो कॉल आई थी शिमी की, she said she got married and she got a visa, was coming to an end. We've done that. Okay, settlement के बारे में. Then we had a few other ones. We had Nabil Tier 1 and 10 years he's completed ILA next year. Wife does not, she needs to confirm that they need to do that on the test. Wife needs to be here for 5 years herself. Yeah, and about the eligible. What about the ILA test? वो इंग्लिश लैंग्वेज का ये है कि अगर वो टियर 1 पे हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम हियर, as long as the degree is from here then he is exempt, because that degrry actually covers that English language requirement. Yeah, Nabil Saab, Rafiq Saab, do you want to add on to that? Yeah, no, I think we covered that. We should deal with Tahir, running short of time. Tahir from Kent. Yeah, I think this was the one उसने बोला था we've got one or two others. कोई conviction थी, ताहिर का जो आया था, indefinite leave to remain next year, बिल्कुल effect होती है नहीं, और of course it will have an effect, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ ये एक रिस्क ले रहा है कि अगर ज़ाहिर है कि अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या कोर्ट में ये मसला गया था भाई, तो ये डेफिनेटली अगर एप्लीकेशन इसने देनी है तो उनको बता देना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। डिपेंड्स ये क्या चीज़ थी, क्या पुलिस ने किया था, जितना सीरियस है उतना फाइन था उन्होंने, you got fined, divorce certificate, I think अगर फाइन हुआ था ना, then I think he has to, वो तो बोलेंगे इन टाइम थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, as a spent होना चाहिए। बिल्कुल। Yeah, so ताहिर साहब का ये अगर spend time होगा, then he can do that, then he should not have an effect on it, but he should disclose that anyway. अगर ये application देने definitely disclose, he needs to disclose that। ताहिर साहब का उससे पहले हमारे कॉल कॉल आई थी शौकत साहब की वर्क परमिट की शायद। जी हाँ, इनका केस जो मुझे समझ आता है वो ये है कि इनको कोई यहाँ पे लेके आया है वर्क पर्पसेस के लिए, और ये काम करते रहे हैं ऑन द प्रीटेक्स के इनके पास वैलिड वर्क परमिट है, और कोई पुलिस का छापा वगैरह भी पड़ा है, मे बी पुलिस का उन्होंने मेंशन किया है, और पुलिस ने ये कह दिया कि ठीक है यू आर ओके टू वर्क। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर यही है कि मैंने जैसे प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी बताया कि वर्क परमिट अगर वैलिड है और जेन्युइन है और आप कंटिन्यूसली उसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आफ्टर 5 years एज लॉन्ग एज योर इनकम थ्रेशहोल्ड इज़ within the requirements of UKBA, which is at the moment 35,000 plus. Yeah. अगर आपके 35,000 प्लस सैलरी शो हो रही है और आपने उस पर टैक्सेस वगैरह दिए हैं, then after 5 years you would be able to apply for indefinite leave to remain.
सो ये अब क्योंकि कॉल की जो क्वालिटी थी इतनी क्लियर नहीं थी, वी वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश ऑल दीज फैक्ट्स। ये शौकत साहब की थे। रफीक साहब आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? ना, आई थिंक वी कवर दैट। बाकी वो जो एक लेडी सी सायरा ने टेलीफोन किया था, मैं actually I found great difficulty in following that one. Indefinitely to remain. She wanted to apply for extension. Yeah, that's right. Yeah, so well, I mean, मेरे पास भी सिर्फ यही है कि she has issue with indefinite leave to remain and she wanted to apply for extension. So in normal circumstances, yeah, when her visa is due for extension, she should be able to apply. उनको दोबारा कॉल करके further information देनी पड़ेगी, because we haven't got enough information to give a appropriate answer. But she can do, but basically under extension she's allowed to. Application तो डाल सकती हैं extension की। सारा आप सुन रहे होंगे तो आपके डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं, आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पर आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें, वी लाइक टू हेल्प यू। और जितने कॉलेज आ चुके हैं हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं दे वांट सम रिप्रेजेंटेशन, वी विल मोर देन हैप्पी टू टेक योर केसेस ऑन। आई थिंक कॉल्स का तो टाइम नहीं है, व्यूज़ हमारे पास कॉलिंग जो आ रही थी ऑब्वियसली हम नहीं ले सकते बिकॉज टाइम रन आउट हो चुका है। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें ऑब्वियसली अर्लियर ऑन इन द प्रोग्राम, एंड क्वेश्चन शॉर्ट रखें सो वी कैन आंसर एज मैनी क्वेश्चंस पॉसिबल। और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीक प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, जो आज कॉल नहीं ले सके उसकी माजरत करते हैं, वी विल टेक द कॉल्स नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टू गिव यू लीगल एडवाइस। मगर बिफोर वी एंड द प्रोग्राम हम यही कहना चाहते हैं टू द व्यूअर्स दैट they need to अपने जो ये चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली द 18,600 रफ़ीक भाई, शायद वी ऑल कलेक्टिवली हमने ये इशू उठाए, दैट इज अनफेयर। एमपीओ को कांटेक्ट करें, अपने काउंसलर्स से बात करें, दे नीड टू गेट लॉबिंग डन because this is unfair and just. आपने mention ये भी करा था under the new rules there's a possibility a bond scheme might be coming for visitors. Again, this shows the hardness of the UKBA board agency and the UK जो immigration rules जो आ रही सकती हैं। तो रफ़ीक साहब आप इसमें मैसेज कुछ देना चाहते हैं before we end? बिल्कुल, ये सही, मैंने ऑलरेडी क्या बोल दिया है कि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये जो हमारे राइट्स हैं ना वो इरोड कर रहे हैं, आहिस्ता 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 कर रहे हैं। तो हमको आवाज़ उठानी चाहिए इसके बारे कि हम खुश नहीं हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली अफेक्टिंग हमारी कम्युनिटी, हमारे जो राइट्स हैं, तो डेफिनेटली कंप्लेन करनी चाहिए और ये चेंजेस हो सकते हैं। शाहिद साहब आप थोड़ा सा मैसेज, अगेन हमने ये मौजूद उठाया है, वे है टू हेल्प द पीपल, अगेन रफ़ीक भाई के साथ कंकर करेंगे और यू वांट टू से समथिंग? बिल्कुल, मैं रफ़ीक भाई की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे इत्तेफाक करता हूँ, और यही कहूँगा कि यूके गवर्नमेंट और UKBA जो है पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका एक पॉलिसी स्टांस है, वो ये है कि दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड EU। ठीक है, EU में बिकॉज दे आर ट्रीटी बाउंड, दे कांट डू एनीथिंग अनलेस दे पुल आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। लेकिन they because they have got a degree of control over immigration from outside Europe, they are doing everything they can to restrict the influx of people coming from to UK, and that's the reflection of all the changes in the rules now. Fantastic, thank you Shahid Sahab and Rafiq Sahab, my team as usual। आप सबका शुक्रिया करते हैं, तो यू बीन जॉइनिंग विद अस, इंटरैक्टिव प्रोग्राम था, आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसका हमने कोशिश करी जवाब देने के, और इंशाल्लाह ताला आपको और मज़ीद जो क्वेश्चन होगा उससे लेंगे, उसकी एडवाइस देंगे। अगर आपके पास कोई इशू होता है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफ एयर्स भी हमारी जो डिटेल्स हैं मिल जाएंगी कंट्रोल रूम से, और जो कॉल्स नहीं ले सके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेंगे। वी विल बी टॉक अबाउट डिपोर्टेशन, विल बी टॉकिंग अबाउट अदर इश्यूज अबाउट इमिग्रेशन, जो न्यू रूल्स आ रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारा साथ दें इंशाल्लाह ताला, वी हियर टू हेल्प यू एंड टू गिव यू गुड लीगल एडवाइस, एंड वी विल बी हियर टू मेक श्योर दैट यू आर सेटिस्फाइड। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, डू लेट्स अस हैव हिम। आपको पता है हमारा एक हिदायत टीवी पे एक पोल चल रहा है अनेस रिगार्डिंग प्रोग्राम्स के बारे में, तो आप उस पर ज़रूर वोट करें। लीगल मैसेज वी वेलकम ना, एज ऑल दीज थिंग्स डू हेल्प। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल मैसेज, कानूनी मशवरे। आइंदा की इजाज़त दें।